Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video. और आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल सुबह का टाइम है. I mean it was around 8 o'clock in the morning and यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ. Okay, so this vlog is going to be about my whole exam week. So finally my exams are over and so I'm uploading this video. So बस यहाँ पर पूरा जो मेरा regular जो routine था, it was to wake up, to study and just to do all some work और फिर एग्ज़ाम देने जाओ एंड देन कम बैक अगेन एंड टू स्टडी एंड दिस वाज द होल रूटीन. मतलब इट वाज नॉट वेरी टफ बट या दिस वाज द होल वीक रूटीन. सो इट वाज एक्चुअली टुक मोर देन 1 week टू फिनिश ऑफ माई एग्जाम्स एंड नाउ आई एम फाइनली फ्री अल्हम्दुलिल्लाह. सो यहाँ पर दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ माई एग्जाम्स एंड इस दिन आई मीन देयर वाज नॉट एनी थ्योरी पेपर बट इट वाज अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर अस. सो इस वजह से आई डिड नॉट हैव टू स्टडी एज सच थिंग बट या मैंने जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी कर ली थी एक दिन पहले. आई जस्ट हैव टू रिवाइज वन मोर टाइम. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले उठते साथ है ना मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी एंड आई ऑल्सो प्रिपेयर द डो बिकॉज वी नीड टू मेक द पराठाज इन द मॉर्निंग. एंड उसके बाद आई वेंट टू द वॉशरूम एंड आई नीड टू देन ब्रश ऑफ माई टीथ और फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे. अच्छा, आई डिड नॉट वेक अप फॉर फजर बिकॉज आई कैन नॉट प्रे दिस होल वीक. So yeah, after getting freshened up, I'm gonna have my breakfast and I also gave breakfast to my brother, and after that I just have a small part of writing work unfinished, so I'm just gonna quickly finish that off. Also my exams were in afternoon around 1 p.m, so I did had a lot of time, or I can say I had the whole morning to finish up my all the tasks. So I'm just gonna quickly finish this off and then I'm gonna take shower and then I'll leave for my exams. Okay, so I came back at around 6 p.m. I know it was quite late in the evening, but the thing was I was quite nervous for my presentation first thing, and alhamdulillah it went very well. And we had another presentation on the next day, and so we have to prepare for that. It was a group kind of presentation, so we have to prepare for that. So we stayed back after finishing off our presentation, and it took quite a time. Like it was around 6 p.m. when I reached at home. And I can say it was a tiring day, but yeah, it was also a very productive day and I was satisfied by that because both of our presentations went very well and we got appreciated. Okay, so यहाँ पर 7 बजे I was having my tea. अम्मी ने चाय बना कर रखी हुई थी. And here let me introduce you to all my new friends. So this is a cat. मतलब ये जो बिल्ली है हमारे नीचे बिल्डिंग में ही रहती है. We have many cats in our society, so this is one of them. She always comes ऑन आर फ्लोर 7th फ्लोर पर ये आती है टू आस्क फॉर अ फूड. एंड मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मतलब इसका रोज़ का हो गया आना. एंड आई डोंट नो हाउ शी इज़ एबल टू गेट टू द 7th फ्लोर एंड एग्जैक्टली एट अ हाउस, बट आई थिंक कैट्स आर क्वाइट स्मार्ट. And sometimes I really wanna take her inside a home but नहीं ले सकते because I already have a Persian cat and I fear कि ये stray cat जो है वो Persian cats पर attack ना कर दे. That's why I cannot take her in a house. So यहाँ पर मैं इसको खाना आना नीचे लेकर जाके बिल्डिंग के नीचे दे देती हूँ लॉबी के पास. and there comes another one. तो यहाँ पर I think ये भी वेट कर रही थी. मतलब ये कभी कभी नज़र आती है मुझे ग्रे वाली, रोज़ नहीं. So I gave food both of them and now I'm gonna go back to my house. और फिर अपना बचा हुआ थोड़ा सा काम जो है नेक्स्ट डे के लिए बचा हुआ है बिकॉज जो मेरे सारे फोल्डर्स मैंने प्रिपेयर कर रखे थे उसका सबमिशन होने वाला है ऑन मंडे. एंड यहाँ पर ये जो था ना फ्राइडे का दिन था.
So Friday and Saturday, both of the days we had a presentation, and from Monday to Thursday we had a theory exams. So let's quickly finish this off. और फिर उसके बाद मैंने ना डिनर भी करना है, और मैं डिनर में ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करवा पाती बिकॉज एग्ज़ाम्स था। तो अम्मी ने कहा कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो फ़िलहाल के लिए, जब तक एग्ज़ाम्स है उसके बाद आई कैन कम इन टू किचन, एंड नाउ आई कैन फाइनली गो इन किचन एंड कुक एंड शूट रेसिपी वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में डिनर लेने के लिए। तो वो जो आप लोगों ने पहले देखा है ना छोटे वाले पॉट में, वो अम्मी ने अपने लिए मूंग और जो मटकी वगैरह होता है, सारे जो पल्सेस, आई रियली डोंट नो इफ इट इज़ कॉल्ड पल्सेस और नॉट, तो वो अम्मी खा रहे हैं आजकल। शी इज़ ऑन अ काइंड ऑफ डाइट, नॉट टू लूज़ द वेट बट टू इम्प्रूव द डाइजेशन। इसमें अम्मी ढेर सारे सैलड्स वगैरह ना ऐड करके, एंड देन शी हैव दिस इन द डिनर। और यहाँ पर डिनर के लिए हम लोगों के लिए अम्मी ने बनाया था मसूर की दाल। मतलब वी रियली लव दिस दाल, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा रेयरली बनाते हैं। आई रियली डोंट नो वाई बट आई लव दिस दाल। तो मैंने यहाँ पर दाल ले ली है, एक चपाती एंड थोड़ी सी राइस। सो आई एम जस्ट गोना हैव माई डिनर, और फिर उसके बाद थोड़ी सी स्टडी और करेंगे एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वीडियो क्लिप ऑफ अ नेक्स्ट डे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली जब मैं क्लास जाने के लिए रेडी हो रही हूँ तब का मैं वीडियो क्लिप शूट कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने अगेन वाइट कलर का आउटफिट क्यों पहन लिया, अगर आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि मैंने इसके जो पहले दिन, वो उस दिन भी मैंने वाइट ही पहना था बिकॉज हमारा जो प्रेजेंटेशन था उसका जो उसके ज़रूरत के अनुसार आई हैड टू वेयर अ वाइट आउटफिट, वाइट कलर्ड आउटफिट। सो इस वजह से ओके, अब मैं जल्दी से क्विकली रेडी हो जाती हूँ। मैंने मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है, और फिर जल्दी से अपना जो हिजाब है वो बांधते हैं and let's quickly leave the house. ओके, सो नाउ दिस इज़ संडे, और यहाँ पर मैंने सोचा कि संडे को बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिव डे बनाएंगे। तो घर के काम तो थे थोड़े बहुत, और यहाँ पे मैंने सोचा कि उसको अपना एक सेल्फ केयर डे बना लेते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम गोना गो टू एनी सैलून और समथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक इट्स बीन मंथ्स आई हैवंट यूज्ड एनी DIY ऑन माई हेयर और फेस। सो आई थॉट कि चलो आज संडे को ही ये वाला जो डे है वो बना लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले ना मेरे बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुके हैं। सबसे पहली बात तो मुझे यूज़ नहीं करना था कोई भी काइंड ऑफ DIY ऑन माई हेयर बिकॉज आई लव माई हेयर। और मैंने सुना है कि दही वगैरह यूज़ करने से इट्स पॉसिबल कि आपके हेयर जो है वो जल्दी ग्रे हो जाते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, दही लगाने से जो है वो डैंड्रफ सारे रिमूव हो जाते हैं, एंड आई एम रियली फेड ऑफ दिस डैंड्रफ। और जो हमारी मेड है उसने कहा कि लेमन यूज़ करने से होता है। सो आई कंबाइंड बोथ ऑफ देम। मैंने दही लिया, उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड किया, एंड देन आई अप्लाइड ऑन माई हेयर, और फिर उसको मैंने टाई अप कर लिया है। मैं हेयर वॉश करूँगी अराउंड हाफ एन आवर के बाद। ओके, सो आई रियली वांटेड टू अप्लाई अ फेस मास्क। पहले तो मैं DIY यूज़ किया करती थी ऑफ अ बेसन, हल्दी एंड वाटर, लेकिन अब आई डोंट थिंक मैं उसको भी यूज़ करूँगी, क्योंकि अब वो भी मेरे फेस पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है उसने भी। तो इस वजह से आई थिंक आई एम गोइंग टू क्विट दैट। और ये वाला जो फेस मास्क का डब्बा है वो मैंने ईद के टाइम पे लिया था, ये पपाया का था। सो इस वजह से आई थॉट कि नेचुरल फ्रूट बेस्ड फेस मास्क है तो ये मेरे स्किन को ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। और हाँ, इसने कुछ ज़्यादा मस्ती या फिर मजाक नहीं किया मेरे स्किन के साथ। तो खैर मैंने इसको ईद के टाइम पे लिया था, और अभी तक इसका हाफ जो बॉटल है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। आई थिंक ये एक्सपायर हो जाने वाला है। खैर, जब तक फेस मास्क और हेयर मास्क ड्राई अप होता है थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं वरना फालतू में इसके रील स्क्रॉल करने बैठ जाऊंगी। ओके, आफ्टर 15 मिनट्स आई वॉश्ड माय फेस, और फिर उसके और 15 मिनट के बाद आई वेंट टू टेक अ शावर, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। सो या आफ्टर वॉशिंग माय हेयर और शावर लेने के बाद फिर हम लंच करेंगे, और फिर दोबारा से पढ़ाई करने बैठेंगे। अच्छा, सो दिस इज़ इवनिंग का टाइम, और यहाँ पर अम्मी जो है वो एक न्यू डिश या फिर यूँ कह लूँ कि कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहे थे। अब्बू ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो आंवला होता है उनका मुरब्बा उनको खाने का बड़ा मन कर रहा है। वैसे अम्मी जो आम का है वो मुरब्बा या फिर जो कच्ची कैरी कहते हैं ना, उसका ज़रूर बनाते हैं, और वो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बहुत यम लगता है उसको। अम्मी ढेर सारा बना के फ्रिज में स्टोर करके ना हमेशा रख देते हैं, बट दिस टाइम माय फादर वांटेड टू ईट दिस आंवले वाला मुरब्बा। तो अम्मी ने थोड़ी सी बहुत रेसिपी चेकआउट की और फिर इसको बनाने के लिए लग गए।
गए। तो सबसे पहले ना इस तरीके से ना सारे आंवला को जो है वो अच्छे से बॉईल कर लिया था। अच्छा, इसमें ना ऊपर हेड पर है ना अम्मी ने क्रॉस कट भी लगाया हुआ था ताकि ये अच्छे से ना बॉईल हो जाए अंदर तक। और उसके बाद जैसे अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसके बाद इसको इस तरीके से ना किचन टॉवल पे निकाल के रख लिया था। और फिर है ना हमने ना इसको अच्छे से ड्राई आउट कर लिया था, मतलब सारा पानी इसका ना उस किचन टॉवल की हेल्प से पैट कर लिया ताकि वो अच्छे से सूख जाए। एंड लुक एट हियर हु इज़ एट आवर होम। मैंने ना इसको ना, क्योंकि माइलो जो हमारा वो कैटू है वो सो रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बेचारी को थोड़ी देर के लिए अंदर आने देते हैं, मतलब शी ऑल्सो नीड्स लव एंड पैम्परिंग एंड या व्हाटएवर इट इज़। तो इसको थोड़ी देर के लिए घर में रहने दिया हमने। उसके बाद फिर से मैं इसे नीचे छोड़ कर आ गई विथ फूड ऑब्वियसली। अच्छा, खैर यहाँ पर डिनर की तैयारी करने लगे हैं। तो डिनर तो वैसे अम्मी ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर डिनर में बन रहा है चिकन बिरयानी एंड आई वॉज सो हैप्पी ऑन दिस डे, क्योंकि बिरयानी बहुत ही रेयरली बनती है ना, आई लव बिरयानी। तो अम्मी बिरयानी बनाएंगे, उसके पहले मैंने ना अनियंस को जो है वो बस कट कर लिया था क्योंकि आई वांटेड अ ब्रेक। तो मैंने सोचा कि बस ये वाला काम भी ख़त्म कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बिरयानी का कोरमा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अम्मी ने कोरिएंडर्स को चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है और अब जो है इसकी लेयरिंग कर लेंगे। राइस को बॉईल कर लिया था तो बस फटाफट से इसकी लेयरिंग करते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो हमारा आंवले का मुरब्बे का जो प्रोसेस है वो आधा रुका हुआ है, सो इसको भी कंप्लीट कर लिया अम्मी ने। तो यहाँ पर एक बड़ा सा पॉट लिया है, उसके अंदर ढेर सारा शुगर ऐड किया है। अच्छा, जो कैरी का मुरब्बा अम्मी बनाते हैं ना उसमें शुगर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उसमें जो जैगरी या गुड़ होता है ना वो यूज़ करते हैं एंड इट रियली टेस्ट मच बेटर देन दिस वन। तो बस यहाँ पर है ना शुगर ढेर सारा ऐड करने के बाद जो आंवला बॉईल करके रखा हुआ था अम्मी ने, तो उसको है ना शुगर के अंदर प्लेस कर दिया है और फिर उसको ना स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे जब तक है ना ये सारा जो शुगर है वो मेल्ट हो जाएगा और आंवले के अंदर सारे के सारे जो शुगर है वो सोक हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड किया अम्मी ने 2 छोटी इलायची और सौंफ। तो बस, और उसके बाद है ना हाँ थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था इसमें। इफ़ यू हैव अ ब्लैक सॉल्ट वेल एंड गुड, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर है ना इसको कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए आई गेस और पकने देंगे जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर ना हो जाए। तो बस हमारा जो आंवले का मुरब्बा है वो रेडी है, उसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम उसको कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। अच्छा, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है यहाँ पर और मैंने जल्दी से सैलड जो है वो बना लिया है क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी है और सबसे पहले यहाँ पर डिनर मैं करने लगी हूँ ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ बिरयानी और भूख भी लगी थी सच में। तो बस जल्दी से अपने लिए मैं जो प्लेट है वो रेडी कर लेती हूँ और फिर डिनर करेंगे हम। अच्छा, डिनर के बाद डेज़र्ट का जो रूटीन है आई थिंक वो हमारा एक कल्चर ही बन चुका है। सो यहाँ पर अब्बू ढेर सारे जो है वो मिठाइयाँ लेकर आए थे। सबसे पहले जो बॉक्स में था वो गुलाब जामुन था और दूसरे एक बॉक्स में जो वो अफलातून मिठाई थी। आई डोंट थिंक एनीवन हियर इज़ अ फ़ैन ऑफ अफलातून, बट या वो एक जो अगर खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना होता है ना, सो उसके लिए ये ठीक ही है। तो यहाँ पर एक में अफलातून जो मिठाई वो थी एंड जो थर्ड बॉक्स है ना उसमें अगेन गुलाब जामुन था, लेकिन इसमें बीच में इस तरीके से मावा या खोया जो भी कहते हैं उसे बीच में ना स्टफ़ किया हुआ था इस तरीके से। तो हमारा जो मिठाइयों वाला ये सेक्शन हो गया था और यहाँ पर मुरब्बा जो है वो या आंवले का मुरब्बा है ना वो अच्छे से कूल डाउन हो चुका था। सो अब अम्मी इसको इस तरीके से ना कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। आप इसको आराम से मतलब 2-3 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। और डिनर तो मेरा हो चुका है और बाकी सब लोगों ने भी घर में डिनर कर लिया था। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम डेज़र्ट। तो अब बस मैं गुलाब जामुन खाऊंगी वाइल वॉचिंग अ टीवी।
ओके सो नाउ दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल डे ऑफ द एग्ज़ाम एंड ये वाली जो कुर्ती है ना वो अम्मी लेकर आए थे मेरे लिए। शी वेंट फॉर शॉपिंग, तो लेकर आए थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है इसका। सो बस फाइनल डे का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया एंड आई वुड लाइक टू एंड माई व्लॉग हियर ओनली। नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ और थोड़ी और ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ दिखाऊंगी। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, और अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। ओके, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।